Okay, so I was saying, so you are in an emergency, you need the money, and you are short of money, and you just need it very badly. You are hungry, you want to eat food, and so you picked up your phone, you are calling your friend. You are calling your friend, you just call him for the first time, second time, third time, he is not picking your call. He or she is not picking your call. You called him for the fifth, sixth time, or the seventh or tenth time. After that, you will say, okay, just leave it. I don't want to call him anymore. He is not picking up my call. So he is not a good friend. You will just learn that. So whenever I am in emergency, that person does not pick up my call. Okay. So you have learned it. Okay. For the next time, whenever you are in any emergency, you will never ever call that person because he never picks up my call on time. Okay. So there is another person, person B, and whenever you call him, he just picked up on the first name. So whenever you have learned that whenever I'm in an emergency, I should call that person because you are sure that whenever I will make him call, he will pick up the call on the first go. Okay. So this is how we learn. Okay. So we learn through the experiences, like through the consequences. So if you are in emergency, there is any trigger. Okay, so there is any antecedent that makes the response of calling, and the consequences are if he is speaking call or not, if your need is met or not from that person. Okay, if your need is met with that person, so you will call him for the next time as well. If your need is not met with that person, so he did not responded you, he did not give you the money, so you will never ever call him back. You learned it. Okay, so this is how you learn everything. Okay. So you learn in three-term contingency every time. Okay. So this is the theory of behaviorism. We learn in three-term contingency. First, there is antecedent, the trigger that makes the response, and that response gets the consequences. If that response is getting the positive consequences like reinforcement, reward, or appraisal, the response might increases in future. It can occur again in the future because it was being reinforced previously. So if that response is getting negative consequences like punishment or ignorance, so might be in next time the response will not occur. Okay, because previously that response was not reinforced. So, so why we behave the same way we are doing it? Because our behavior was reinforced in some ways previously. That's why we are behaving this way. If my behavior is punished and somehow it is punished, so I might not behave the same way again in the future. Okay, so मैं वैसे बिहेव नहीं करूंगा क्योंकि प्रीवियसली मुझे पता है कि ये हेट किया गया था, ये मेरा रिस्पॉन्स ऐसा बिहेवियर. सो अब जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे को मदर मार्केट लेके जाती है. सो द एंटीसीडेंट इज दैट द चाइल्ड लुक्स एट द स्पाइडरमैन, so he just wants the Spider-Man. So that looking at the Spider-Man is the antecedent, and the response from the child is, "Oh, I want that Spider-Man. I want it. Oh, wah, wah, wah." So he started crying. If the mother buy the Spider-Man for him for his crying, so his crying is being reinforced. So the next time, whenever he wants something, he will cry. If the mother just stopped him, keep quiet, I will not give you the Spider-Man. Just keep quiet. We are going home. So I will not bring again. So वापस नहीं लेके जाऊंगी तुम कभी भी मार्केट में. So उसका बिहेवियर बच्चे का पनिश्ड हो गया. तो उसको वो स्पाइडरमैन नहीं मिला. नेक्स्ट टाइम द चाइल्ड विल लर्न कि इस तरह के रिस्पॉन्सेज देने से मुझे रीइंफोर्समेंट नहीं मिलती, तो लेट्स जस्ट लीव दीज रिस्पॉन्सेज. मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं है. He learned it through the three-term contingency. So this is called the behaviorism, the theory of behavior, that how we learn things. Okay, so सर सर मेरा एक क्वेश्चन है yes. कि आपने जो एग्जांपल दी कि बच्चे ने स्पाइडरमैन को देखा, उसने अपना बिहेवियर शो किया, उसने क्राई किया,
तो उसका कॉन्सिक्वेंस जो होगा वो क्या होगा, मतलब हम भी क्राइम को तो हम बिहेवियर में ले लेंगे ना, कि बच्चे ने स्पाइडरमैन को देखा तो उसने क्राई किया, वो उसका बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा? इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दे, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। कॉन्सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंस क्या है? कॉन्सिक्वेंस जो भी बिहेवियर के फौरन बाद नेक्स्ट पर्सन की तरफ से आपको रिस्पॉन्स मिलता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपका बिहेवियर था, बच्चे का बिहेवियर था क्राइम, ठीक है। अब उस बच्चे को अगर वो स्पाइडरमैन मिल जाता है, तो वो उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं। उसके बिहेवियर के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो पॉजिटिव है, वो रीइंफोर्समेंट है, वो उसका बिहेवियर रीइंफोर्स्ड हुआ है। अगर उसको इन रिस्पॉन्स बच्चे के बिहेवियर को रीइंफोर्स ना किया जाता, वो उस मदर उसको डांट देती या चुप करवा देती या उसको स्पाइडरमैन ना लेके देती, वो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि उसको उसके जो चीज थी, जिस चीज के लिए बिहेवियर परफॉर्म किया जा रहा था, वो चीज उसको नहीं मिली, ठीक है। सो वो पनिश हो गया बिहेवियर। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वो बिहेवियर दोबारा अकर ना हो, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज मुझे नहीं मिलती इस तरह से बिहेव करने से, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंसेस हर वो चीज है जो रिस्पॉन्स या बिहेवियर के फौरन बाद अकर होती है, ठीक है। इस चीज को जरा समझने की जरूरत, इट इज वेरी ट्रिकी टू असेस व्हाट इज कॉन्सिक्वेंसेज एंड व्हाट आर द एंटीसीडेंट्स। ये मैं इस सर, ये तो मैं सर आप कहें। आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा, कि आप लोगों ने 20 एंटीसीडेंट्स, 20 बिहेवियर्स एंड 20 कॉन्सिक्वेंसेज आपने असेस करने हैं किसी भी पर्सन के, ठीक है। चाहे वो हाइपोथेटिकल हो या डायरेक्ट आप ऑब्जर्व कर रहे हो या जस्ट हाइपोथेटिकली इमेजिनली आप नोट डाउन करें। सर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ऐड करना चाहूंगी। जी मैं हूं ना, प्लीज। सर मेरा कजन है छोटा सा, तो वो हम लोग एक दिन ऐसे ही उनके घर गए हुए थे, तो मामा जो है ना वो इस तरह ना सिर्फ रो रहा था ना, झूठ मूठ का नहीं रोना होता वैसे। तो वो छोटा सा है हालांकि, तो मामा ने उससे पूछा कि आप इस तरह क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि मामा ने उसको ये बोला कि मतलब आप रो नहीं रहे, सिर्फ इस तरह की आवाजें क्यों निकाल रहे हो? तो वो आगे से कहता है कि अगर मैं इस तरह की आवाजें नहीं निकालूंगा तो मम्मा को लगेगा ना कि मैं रो नहीं रहा, तो वो फिर मुझे मेरी बात नहीं मानेंगी। तो अगर मैं इस तरह की आवाजें निकालूंगा तो मेरी बात मान लेंगी। इसका मतलब ये है कि जिस तरह आपने एग्जांपल दी कि पहले उसकी मम्मा ने इस बिहेवियर पे उसकी बात मानी है ना, तो इसलिए फिर उसका ये बिहेवियर जो है ये इन्फ्लुएंस हो गया है। मैं अगर दोबारा ऐसे करूंगा तो मम्मा मेरी बात मानेंगी। यस, वेरी गुड एग्जांपल। सो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो डिफाइन करते हैं कि ये बिहेवियर नेक्स्ट फ्यूचर में अकर होगा या नहीं होगा। ये कॉन्सिक्वेंसेस डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर तो पनिशमेंट मिली है बिहेवियर को या रिस्पॉन्स को, तो नेक्स्ट टाइम वो बिहेवियर्स अकर नहीं होंगे। अगर रीइंफोर्समेंट मिली है तो नेक्स्ट टाइम अकर होंगे। अब जैसे यूजली मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द चेनिंग, एंड दिस इज द एंटीसीडेंट, दिस इज द एसटी, and you says that chaining is blah blah blah. Okay, so you answered it. I said good job. So when I say good job, you are right. You did it nicely. और आपने एक correct answer दिया, accurately आपने answer किया. So I am appraising you. My appraisal is the reinforcement for you. Okay. So the response here is the answer you are giving is the response. ST क्या है? जो मैंने क्वेश्चन किया है, ठीक है, ये एसटी है। समझ आई? अब आप लोगों ने मुझे आइडेंटिफाई करके बताना है कि एक सिनेरियो में आप लोगों को देता हूं, उस सिनेरियो में से आपने एसटी, रिस्पॉन्स और कॉन्सिक्वेंसेज आप लोगों ने मुझे बताने हैं, ठीक है। आ, अब एक आदमी है, वो घर में एंटर होता है। सो ही स्मेल्स, ही सेड आज बिरयानी बनी है। सो इसकी वाइफ कहती है हाउ यू नो, लेट्स ईट द बिरयानी। सो वो बैठ के बिरयानी खाना शुरू कर देते हैं। सो इसमें एंटीसीडेंट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? सर हंगर सर, एंटीसीडेंट है। नहीं,
हंगर एंटीसीडेंट नहीं है। सर उसने जो स्मेल किया है ना, वो फ्रेग्रेंस। एंटीसीडेंट है। और फिर उसके बाद जो उसका बिहेवियर आया वो यह है कि ओ आज बिरयानी बनी है, और उसके कॉन्सिक्वेंस में उसकी वाइफ ने जो उसको रिस्पॉन्स दिया है वो दिया है कि यस बिरयानी बनी, आपको कैसे पता चला, और मिलके जो खाते हैं। हाँ तो वो, ये कॉन्सिक्वेंस है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो द एंटीसीडेंट इज द स्मेल, द स्मेल of biryani is the antecedent. When I said आज बिरयानी बनी है, it was the response, and the reinforcement क्या थी, आगे से बिरयानी मिल गई, मैंने खाई, वो आया, I'm happy। ओ ये अरे, सो ये थ्री टर्म कौन एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस। एक बच्चा, उसने आ, उसको उसके पेरेंट्स चिड़ियाघर लेके जा रहे हैं, तो जैसे ही उसने लायन को देखा, उसने कहा मामा वो है लायन। तो बच्चे, मदर ने कहा यस इट इज द लायन, हाउ डू यू नो, गुड जॉब, तो यू आर सो स्मार्ट। तो ये एक सिनेरियो, इसमें एंटीसीडेंट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है। कौन गाइस? सर एंटीसीडेंट आई गेस स्कूल में जाना है, फिर रिस्पॉन्स बच्चे का जो आपको देखना है, तो मदर का उसको अप्रूवल देना। दोबारा तो वाओ ट्राई यू विल गेट करें, एन अपॉर्चुनिटी। ट्राई अगेन। हमने एक मिस्टेक सिर्फ की है। सर रिस्पॉन्स क्या था, सबसे पहले मुझे ये बताएं। सर उस सर आप बच्चे दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? माय क्वेश्चन इज, एक पेरेंट अपने बच्चे को जू लेके गए, बच्चे ने जैसे ही लायन देखा तो बच्चे ने कहा मामा लुक एट दैट इज द लायन। Mama said, wow, how do you know this is the lion? You are right. This is the lion. Good job. You are so smart. सर एंटीसीडेंट लाइन था, उस पे जो बिहेवियर उसका हुआ कि वाओ मामा लुक एट द लाइन, और जो उसकी मामा ने उसे पॉजिटिव रिंफोर्स किया दैट हाउ डिड यू नो, Ah, वो very कॉन्सिक्वेंस था। good job. Very nice, Gurdev. You are right now. So the सर visual of lion, the presentation of lion is the antecedent. Response was, look, mama, that is lion. So that was the response. Consequences were like, how do you know? Good job. You're so smart. So this is the consequences. ठीक है, समझ आई? सर मैं एग्जांपल ऐड करूं। जी प्लीज करें। सर जैसे हम बच्चे से कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, हम्म। बच्चे को मैंने एक्टिविटी दी, सॉरी बच्चे को मैंने उसकी फेवरेट टॉय दिया, और मैंने वो उससे ले लिया, ठीक और है। उसपे वो इंसिडेंट हो एंटीसीडेंट हो गया कि बच्चे से मैंने टॉय ले लिया, उस पे उसने बिहेवियर शो किया क्राइम का, और उसका कॉन्सिक्वेंस ये आया कि बच्चे ने मुझे हिटिंग की, या तो फिर जब मैंने उसको टॉय दिया उसने उसको थ्रो कर दिया। वेरी गुड। ये भी एक एग्जांपल हो सकती है। वेरी गुड गुरुदेव। और बाकी सब भी एग्जांपल दें कोई मुझे, एंटीसीडेंट, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेस की। जल्दी से एक एक पर्सन एक एक एग्जांपल दे जल्दी से। Like everything is intended, right? None of the behavior is unintended. So behaviorism says, if a person behave in a way, there is a reason behind it. It is intended. Okay. So there are some antecedent, and previously there that response or the behavior has a history of reinforcement. So that's why the behavior is occurring because of the previous history of reinforcement. So it says, behaviorist says, behaviors are intended. ओके। सो जो भी बिहेवियर्स हैं उनकी एक एंटीसीडेंट है और कॉन्सिक्वेंसेस की हिस्ट्री है। ठीक है। सो उस पे मुझे एग्जांपल्स अगर आप बना के दे सकते हैं, हर पर्सन, जैसे गुजैर ने दी है एग्जांपल, महमूना ने भी दी है, तो आप लोगों में से अगर एग्जांपल दे सकते हैं तो गिव मी वन वन एग्जांपल। सर हमारा क्विज है, तो क्विज है, उसके लिए ये एंटीसीडेंट हो गया, उसके लिए हम जो है वो behavior show करेंगे, उसकी प्रिपरेशन करेंगे,
हमारे गुड मार्क्स आ जाते हैं, तो हमारी एक इन्फोर्समेंट का बाइस होगा। मेमुना, कुछ चीजें मैंने मिस भी की हैं। आवाज आपकी थोड़ी कट रही थी, तो मुझे कुछ चीजें बीच में समझ नहीं आई। आप दोबारा रिपीट कर देंगे? जी मेमुना, आपको आवाज आ रही मेरी? आई थिंक सो मिस मेमुना के नेटवर्क में प्रॉब्लम है। कोई और एग्जांपल देना चाह रहे हैं एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस की? चले, ये एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। कल तक आप लोगों ने मुझे 20 एंटीसीडेंट, 20 बिहेवियर्स एंड 20 कॉन्सिक्वेंसेज आपने लिख के मुझे भेजने हैं। पेज पे लिखें, कंप्यूटर में लिखें। लिख के आप लोगों ने कल की क्लास से पहले पहले आप लोगों ने मुझे सबमिट करने। आई विल चेक दोस एंड आई विल, आप लोगों ने बेसिकली 20 सिनेरियोज लिखने हैं। 20 लिखने, उन सिनेरियो के नीचे आप लोगों ने कॉन्सिक्वेंस, इसमें एंटीसीडेंट क्या था, कौन बिहेवियर क्या था और कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, वो आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है? 20 सिनेरियोज, हर सिनेरियो की डिटेल के इसमें एंटीसीडेंट, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या है, ये सब ने कल की क्लास से पहले मुझे सबमिट करने हैं। मैं चेक करूंगा सर और 10 उसमें नहीं कर आपको सकते? स्कोर करूंगा। यस मुस्कान? सर मैं वैसे ही पूछ रही हूँ कि 10 नहीं कर सकते? नहीं, 20 करें, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स होंगी उतना ही आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है? 10 आर नॉट इनफ। सर क्लास किस टाइम होगी कल? कल क्लास इंशाल्लाह, कल क्लास अर्ली कर लेते हैं, 7 PM पे। और सर सर एंड किस मेरी टाइम? मेरी एक और क्लास होती है 6 से 7, तो वो कभी कभी थोड़ा 10-15 मिनट ऊपर भी हो जाते हैं। 7:30 पे शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके सेवन सर। थर्टी 7:30 is not a bad time. So if you all want in the morning, we can do also in the morning. Or if you want in the evening, we can do it. It's totally up to you. ठीक है? आज की क्लास के लिए इतना काफी है, आई थिंक सो। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसको, इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, चेनिंग प्रोसीजर्स को। और इसको प्रिपेयर करें अच्छे से, इसको स्टडी करें, ताकि मुझे क्लास में आप लोगों को, आप लोगों से डिस्कशन करनी है। मुझे आप लोगों को, हम डिस्कशन करते हुए चीजों को सीखना चाह रहे हैं, ना कि जस्ट मैं बोलता जाऊं और आप लोग सुनते रहे। नो, आई विल आस्क यू द क्वेश्चन, यू विल आस्क मी द क्वेश्चन, आई विल आस्क क्वेश्चन, यू विल आस्क इट। ओके? तो हर कोई कमेंट पास करे, or and I want all of you to pass comments on whatever I say and whatever other student says. Okay? So comment हर तरफ से आने चाहिए मुझे, हर स्टूडेंट की तरफ से। ठीक है? ये मेक श्योर करें, इसको प्रिपेयर किया करें टॉपिक को क्लास स्टार्ट होने से पहले। आप सबको जो है हमने शेयर कर दी है स्केड्यूल, टॉपिक्स वगैरह, जो स्टेप बाय हम चलेंगे इंशाल्लाह। तो उसको पहले से ही आप लोग एक गो थ्रू किया करें, आप लोगों को ना हो, ताकि बिल्कुल न्यू चीज ना हो आपके लिए कि आप लोग पार्टिसिपेट ना कर सकें डिस्कशन में। ठीक है? सो इंशाल्लाह कल की क्लास में जरूर पार्टिसिपेट करें आप सब लोग, और बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। आप लोग मेरी पॉइंट्स में से पॉइंट्स निकाला करें, उनमें से क्वेश्चन किया करें इंशाल्लाह। ठीक है? सो आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। सी यू टुमारो। ओके? सर, यस। सर एक क्वेश्चन था। जो अभी आपने हमारा क्विज लिया था, उसमें एक क्वेश्चन था, वो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, या वो आप बाद में करेंगे? जी, आप मुझे बताएं। सर,